Hello everyone. Today's session is on a question: why China has zero terrorism. This is a big question that every country right now is facing some on other a problem like terrorism, Maoist and everything. Why China is not facing this? This is a great concern to be studied that what are the factors by which China is controlling terrorism. The first point which I have find out is the strict counter terrorism. It is a very severe punishment, like death punishment. There's only one thing that's no life imprisonment. They simply give you the death penalty. This is the biggest one. Second thing, advanced surveillance state. They have an advanced surveillance system in which they have cameras. Even Indians also have cameras all across India, but we don't have a facial recognition system. They have a facial recognition system. Each and every head they count, each and every face they recognize, and they track down those people who are against China. That means if they have any ideologies or any kind of propaganda. Third thing, repression of dissents. Social media monitoring, restrictions on using like YouTube and WhatsApp and other like Googles and everything. You cannot use in China. China has their own Google, their own WhatsApp and everything. Fourth, economic development, the major factor. Almost around many of the population in China are above poverty now. There is almost around zero poverty. They are reaching towards zero poverty. Fifth point, international cooperation. China indirectly cooperates with the countries if any of the terrorists flee and try to enter in China. The facial recognition system on the airport or on the security camps immediately captures, and that person is detained and handled and being transported back to that particular country where they have committed the crime. Then there is sixth, authoritarians, that is authoritarian governance, that is swift and decisive. They decide very quickly. They don't take too much of meeting. They don't give too much of importance to the inquiries and everything. Seventh, control one's info. What are you surfing? What are you searching? What are you listening? What are you seeing? You can say that it's a kind of cyber jail. You can say that. They give you a cyber jail feeling. Eighth one is the mass detention and re-education. There is a Xinjiang program in which if the people are found in these kinds of ideology and propaganda, they have been detained, they have been sent to Xinjiang, that's a province, where they are re-educated and made understand that what is loyalty towards the country. These are the major reasons that why China has zero terrorism. Now you understand, you think why other countries are having, because they are not implementing these strict laws. No doubt, China is a competitor for the entire world, but some things we can learn from a country which has grown itself as the top second economy after US. So we should learn something. आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना जो है वो जीरो टेररिज्म क्यों है वहां पर. देखिए उनकी बहुत सिंपल सी गाइडलाइंस है. पहला जो पॉइंट मैंने निकाला है, हमारे यहाँ पे भी कैमरास है, सब कुछ है, पर हमारे यहाँ पे ये चीज क्यों हो रही है कि ये चीज चले जा रही है कि टेररिज्म खत्म ही नहीं हो रहा है. पहला पॉइंट है उनका स्ट्रिक्ट काउंटर टेररिज्म. वहां पे सीधा डेथ पेनल्टी देते हैं. कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, कोई केस नहीं, कुछ नहीं, कोई हियरिंग नहीं, सीधा उठाओ डेथ पेनल्टी, खत्म. इतना डर बना दो टेररिस्ट में, इतना डर बना दो लोगों के बीच में कि लोगों को बात समझ में आ जाए हमने 19-20 भी किया देश के अगेंस्ट, तो हमारा सीधा राम नाम सत्य है. सेकंड होता है एडवांस सर्वेलेंस स्टेट. उनके पास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है. हर इंसान का वो हेड काउंट करते हैं. हर इंसान जो चल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, होटल में खा रहा है, गाड़ी चला रहा है, सबका हेड काउंट होता है. ये देखा जाता है कि कौन सा इंसान उनके देश के लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा ऐसा तो नहीं कोई कहीं से भाग भूग के आया हुआ है और ये बंदा यहाँ पे घुस गया है और ये कल की डेट में चाइना को नुकसान कर सकता है. नोटिस करने वाली बात है, इलीगल इमिग्रेंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब हर कंट्री में पाई जाती है, चाइना में नहीं पाई जाती. बॉस चाइना घुसने ही नहीं देता है. चाइना में इतना डर है उन लोगों को कि उनको अच्छे से मालूम है ये सीधा मार ही देगा पकड़ के. कोई यहाँ पे कोई केस नहीं होता. कोई आप रेफ्यूज के लिए कोई रिक्वेस्ट भी नहीं मांग सकते. थर्ड पॉइंट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेंट. इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली. वहां की रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच को. आप उटपटांग कुछ नहीं बोल सकते. जैसे इंडिया के जो नेता है ना, कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, माइक पकड़ लेते हैं, मुंह जवानी कुछ भी देश के बारे में बोलते, कभी कभी तो दूसरे देश में भी जाके कुछ भी बोल के आ जाते हैं. वहां ऐसा नहीं. वहां सीधा उड़ा देते, सीधा बोलते डेथ पेनल्टी, खत्म. बिल्कुल जैसे राष्ट्रद्रोह होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं देश के प्रति अपनी ईमानदारी नहीं की है, उस तरीके का वहां पे केस बैठा देते. फिर वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है. तो पॉवर्टी नहीं है तो इंसान गलत काम खुद ही नहीं करता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप अपने काम में बिजी. देखिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है. खाली दिमाग रहा ना तो इंसान को ऊट पटांग बातें समझ में आती है, ऊट पटांग चीजें करता है, ऊट पटांग लोगों से मिलता है, उठता बैठता गलत तरीके से. मैंने इंडिया में कई लोगों को दिखा है कि वो क्या है, खाली रहता है, खाली दिमाग, या तो पांटपरी में बढ़ जाते हैं, थोड़े दिन बैठते हैं, थोड़ी बाद उनके दिमाग में और खुरापात चलती है कि शॉर्टकट से कैसा पैसा कमाया जाए. फिर आता है इंटरनेशनल कॉपरेशन. हम कितना भी चाइना को क्रिटिसाइज करें, पर चाइना इनडायरेक्टली हर कंट्री को टेररिज्म या टेररिस्ट की खबर देता है, क्योंकि उसका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर उसके एयरपोर्ट या कहीं पर भी हार्बर में वैसा इंसान मिलता है जो भाग के बाहर से है, उसके नीचे टेररिस्ट करता है, डिटेन करता है, और डिटेन करके उसको वापस ट्रांसपोर्ट कर देता है उसी कंट्री को जिसका वो बिलोंग करता है, जहां से वो क्राइम करके आया है. इसलिए वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स ना के बराबर है.
इसके बाद आता है छठवां पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें स्विफ्ट और इमीडिएट डिसीजन लिए जाते हैं। ज्यादा इंक्वायरी, ज्यादा कमीशन बैठा दिए या रिटायर्ड जज को रख लिए, वो सब वहां पे नहीं चलता। उठाओ सीधा या तो जेल में डालो, नहीं तो उठाओ सीधा डेथ पेनल्टी दो, बात खत्म। फिर आता है कंट्रोल्ड इन्फो। आप क्या सर्फिंग कर रहे हैं, आप किस टाइप का मटेरियल दिख रहे हैं, आप गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल तो है नहीं वहां पर, मतलब आप कहीं पे भी क्या सर्च कर रहे हैं, आप किस टाइप के प्रोपेगेंडा या किस टाइप की वीडियोस देखते हैं, किस टाइप का आप इंटरेक्शन करते हैं, आपके चैट्स को देखे जाते हैं, आपके व्हाट्सएप, व्हाट्सएप तो है नहीं, उनका खुद का व्हाट्सएप बनाया हुआ वी चैट नाम से, सब मॉनिटर किया जाता है। फिर आता है मास डिटेंशन। अगर कोई ऐसी चीजों में लिप्त पाया जाता है तो उसको पहले पकड़ा जाता है, पकड़ के उसको रीएजुकेट करने के लिए वहाँ पे एक शिनजान प्रोविंस है, वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वहाँ पे उनको दोबारा से पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है, समझाया जाता है कि भाई देश के प्रति ईमानदार रहो, काम नहीं है, काम मिल जाएगा, बट गलत काम मत करो और गलत लोगों को देश में एंट्री मत करो। तो ये सोचने लायक बात है कि हर देश आज की डेट में टेररिज्म से ग्रस्त है, चाइना नहीं है। ये वो पॉइंट्स है जो मैंने निकाले हैं जिसके कारण ये। तो शायद हम सब देशों को ये सोचना चाहिए, हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए, शायद अब जरूरत है स्ट्रिक्ट होने की। बहुत हो गया, बहुत प्रोपेगेंडा हो गया, थोड़ा देश के लिए काम करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट और अच्छी लगी होंगी, अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन सबके भले के लिए है, जिससे हर नागरिक समझदार हो सकता है, आप इसे आगे स्प्रेड कर सकते हैं, आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं कि सही चीजें समझिए, सही चीजें कीजिए, देशद्रोह ना कीजिए, देश के प्रति ईमानदार रहिए। थैंक यू।